Host you here today for a information seminar on big data analytics. I heard Siddharth was asking there as to how many of you had heard of analytics ever. Uh, so I think the response was very less, if I understand it correctly. Right? Is there how many people have really heard about analytics as a concept? Anyone? Okay, all right, good. So 10 students who have heard of analytics. Okay, all right. So I hear that there are 10 students who have heard of analytics as a concept. Now, uh, is my voice clear or not, guys? Is my voice clear to everyone? Okay, all right, good. Thank you. Uh, all right. So good that 10 people at least have heard of analytics as a concept. So you see, the moment we think of analytics, there is absolutely, I'm sure there is absolutely no one in the class who can say that he's not touched by analytics. Okay, everyone here is touched and affected by analytics. Now, when I say this, what happens is, say for example, when you go to buy any anything from Pantaloons as a if suppose if you go to Pantaloons and you think of buying a pair of shirt, right, or a pair of trousers, okay, or anything that you're willing to buy from Pantaloons. So the moment you go there, the moment you swipe your debit card or you pay by cash, the moment they give you a bill, right, so that data gets stored in their systems, right, and once that data gets stored, now if you multiply that with so many customers, around 6 to 7 lakhs customers that they handle on a daily basis across so many stores that they have in the entire country. So अगर आप पूरा ओवरऑल वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट हो रहे हैं, राइट, एंड व्हेन आई से डेटा पॉइंट्स मतलब कौन से स्टोर में आज के दिन में क्या बिका और क्या नहीं बिका और कितना चीज़ बिका और कितना चीज़ नहीं बिका, सारे उनके पास ये सारा डेटा का एक रिपोजिटरी, एक डेटाबेस में स्टोर होता जाता है. नाउ जब भी उनके पास ये डेटाबेस में स्टोर हो गया, व्हेन द डेटा इज एक्चुअली देयर इन द डेटाबेस, देन वो कोई भी एक प्रोग्रामर को, कोई भी एक स्टैटिस्टिशियन को बैठा के उनको ये बोल सकते हैं, यार इस डेटा को एनालाइज करके हमें ये बताना है, हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि नेक्स्ट मंथ में किस तरह का सेल होने के चांसेस हैं, जिससे कि हम बेटर प्रिडिक्ट कर पाएँ, अपने आप को बेटर इक्विप कर पाएँ, अपने आप को रिसोर्सेज सही से लगा पाएँ. सो एनालिटिक्स के थ्रू वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई पास्ट में इस तरह से ट्रेंड हुए ही हैं, तो फ्यूचर में ऐसा चांस होने का, ऐसी चीज़ होने की चांसेस हैं. और उसमें इतना प्रिसिशन होता है कि दे कैन प्रिडिक्ट विद एक्यूरेसी ऑफ 95 to almost 99% as well in many scenarios. So that is the application of analytics. But I'm going to talk about these examples again and again throughout throughout the day's session. You would see that on the left hand side there is a picture given which says variety, velocity and volume. Now what exactly it means, I'm going to talk about this in the next couple of slides, but just remember that there are three very important components when it comes to defining what big data analytics stands for. So we'll talk about all these things again.
ये मेरा आज का एजेंडा है जो मैंने प्लान किया था, बट मेरा एजेंडा बहुत फ्लेक्सिबल है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये समझ में आए कि एनालिटिक्स क्या होती चीज़, एनालिटिक्स और बिग डेटा क्या होती है, और उसमें क्या करियर बनाने के चांसेस हैं, क्या करियर बनाने के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये इतना आज के दिन में इतना हाई ग्रोथ करियर क्यों माना जाता है, इतने बड़े बड़े कंपनीज इसमें इतने पैसा पैसा क्यों डाल रहे हैं, इतना सारा, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अच्छे अच्छे एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे क्यों हो रहे हैं, लोगों को क्यों इतना पैसा दिया जा रहा है। सो वो सारी चीज़ें हमें हमें एक्चुअली आपको आज हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो हम आपको समझा पाएँ। So, going to the next slide. Now, if you notice on the next slide, what I am showing you is, हम हर एक मिनट में, मैं क्या दिखाना चाहता हूँ इस स्लाइड से, कि हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं हर एक मिनट में। सो इन 60 सेकेंड्स आप आप अराउंड 7 लाख और सॉरी नॉट 7 लाख, आप अराउंड 5,10,000 कमेंट्स डालते हैं फेसबुक में। आप कई सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सपोज 13,000 प्लस एप्लीकेशन आपके स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं। हर एक मिनट में हम 600 से प्लस ज़्यादा यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हम गूगल में हर एक मिनट में हम गूगल में कुछ 7 लाख सर्च क्वेरीज डाल रहे हैं। हम ट्विटर में, अगर कोई ट्विटर में है, कोई फ्लिकर में है, कोई लिंक्डइन में है, अगर आप ये देखेंगे कि हर एक मिनट में, जस्ट से इमेजिन हियर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक मिनट में 170 मिलियन ईमेल्स आर सेंड, 170 मिलियन, दैट मीन्स 17 करोड़ ईमेल्स एक एक मिनट में जा रहे हैं। तो आपको, अगर आप ये देखोगे कि एक एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ डेटा हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हम हर एक मिनट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो जब भी हम ये कहते हैं कि हर एक मिनट में इतने इतने क्वांटिटी में हम जो डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका क्या होने वाला है, और उस डेटा को हम क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, उस डेटा को हम क्या यूज कर सकते हैं कोई और अच्छी चीज करने के लिए। सो बिग डेटा एनालिटिक्स इज ऑल अबाउट, वन पार्ट इज टू स्टोर द डेटा, ठीक है ना। एक पार्ट ये है कि हम डेटा को स्टोर कैसे करें, और एक पार्ट ये है कि अगर डेटा स्टोर हो गया तो उस डेटा को एनालाइज कैसे करें, ठीक है। सो बिग डेटा में दो चीजें हैं, एक है स्टोरेज और दूसरी है एनालिसिस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप स्टोर स्ट्रक्चरली नहीं करोगे उसको तो आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। सो हर एक मिनट में हम इतने अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसको अगर हमने अगर ठीक से स्टोर नहीं किया तो फिर वो डेटा अनमैनेजेबल हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर इतने सारे पैसे जो हैं वो खाली डेटा स्टोरेज में, डेटा फार्म्स में डाल रहे हैं, सर्वर फार्म्स में डाल रहे हैं। एक और फूड फॉर थॉट मैं आपको देना चाहता था, अगर आप खुद के बारे में सोचोगे तो आप लोगों ने मैक्सिमम कितने फाइल साइज, क्या मैक्सिमम फाइल साइज आपने कभी डील किया होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलेंगे कि हाँ मैंने एक मूवी का फाइल यूट्यूब से डाउनलोड किया या फिर ऑनलाइन डाउनलोड किया। तो मूवी का फाइल आप बोलोगे यार अच्छा 1 GB था या 2 GB था या 3 GB था या 4 GB था, उससे ज़्यादा मोस्टली कोई भी क्लास में अभी तक एक फाइल, उससे ज़्यादा बड़ा फाइल कोई हैंडल नहीं किया होगा, राइट। और अगर आप मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड के बारे में बात करोगे तो अगर आपके घर में बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, आपके कॉलेज में बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, तो वो रहेगा मैक्सिमम 50 Mbps, 40 Mbps। उससे ज़्यादा आज के दिन में बड़े बड़े मेट्रोज में भी जल्दी से कोई स्पीड की बातें नहीं करता। बट हम जब बिग डेटा के बारे में बात करते हैं तो ये जो साइजेस हैं 1 GB, 2 GB, 4 GB और 50 Mbps स्पीड है, ये सब बहुत स्मॉल हो जाते हैं, बहुत ही छोटे माने जाते हैं। इसलिए छोटे माने जाते हैं बिकॉज द साइज ऑफ द डेटा दैट वी आर प्रोड्यूसिंग ऑन ए डेली बेसिस इज वेरी वेरी ह्यूज, एंड दैट इज वाई ऑन द राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो एक मैंने ना एक ग्राफ आपको दिखाया है यहाँ पे
और इस ग्राफ में मैंने क्या दिखाया है कि 1 गीगाबाइट्स में 10⁻⁹ अप्रॉक्सिमेटली बाइट्स होते हैं, बट गीगाबाइट्स बहुत ही छोटा माना जाता है बिग डेटा में. वी टॉक ऑफ टेराबाइट्स, वी टॉक ऑफ पेटाबाइट्स विच इज 10⁻15, we talk of exabyte which is twice which is which is 10⁻18, so which is almost not just double, actually so many times more than gigabytes, then zettabyte and yottabyte. So this is the kind of data that we are talking of. अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो आज के दिन में एवरी डे वी आर क्रिएटिंग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डेटा, राइट. एंड और सारे जो डेटा है ये कहाँ से आ रहे हैं? आपके जो सोशल मीडिया का जो आपका पोस्ट है, जो आप पोस्ट कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ा सोर्स बन गया है. इस इतना सोशल मीडिया एंड सर्च क्वेरीज जो आप ऑनलाइन पोस्ट करते हो, उसका एक दोज हैव बिकम वेरी वेरी लार्ज सोर्सेज फॉर दिस बिग डेटा. प्लस एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर आपको समझना है तो 90% ऑफ डेटा दैट आज के दिन में हम वर्ल्ड वाइड हैंडल करते हैं वो खाली लास्ट 2 years अलोन में क्रिएट हुए थे. जस्ट लास्ट 2 साल में हमने जो भी ओवरऑल आज के दिन में हम डेटा हैंडल कर रहे हैं वो खाली लास्ट 2 साल में हमने क्रिएट किया है. सो आप ये भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड के साथ हम डेटा को क्रिएट करते जा रहे हैं. ऑल दिस डेटा, द बिग डेटा, द मेन सोर्सेज ऑफ बिग डेटा आर वेरी 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 कॉमन सोर्सेज. वन इज सेंसर्स. व्हाट आर दीज सेंसर्स? सपोज आप ट्रैफिक लाइट में आप देखते हो कि ट्रैफिक लाइट ग्रीन, येलो और रेड होती हैं. सो आप कई बार आप देखोगे कि ये जो ऑटोमेटिकली रेड, ऑटोमेटिकली ग्रीन और ऑटोमेटिकली येलो हो रही हैं, ये होती है क्यों? बिकॉज वहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं. तो अगर आप ये देखोगे कितने एक सिटी में, एक छोटी सी सिटी में कितने सेंसर्स, कितने ट्रैफिक लाइट्स होते हैं और हर एक ट्रैफिक लाइट में कितने सेंसर्स होते हैं और उसी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितने सारे सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड. सो ये जो पूरा डेटा गैदर हो रहा है, इस डेटा को भी कोई इंटेलिजेंटली एनालाइज कर सकता है. ये एनालाइज कर सकता है कि भाई किस टाइम ऑफ द डे में किस जगह कितनी ट्रैफिक होती है, या वन वे ट्रैफिक ज़्यादा होती है एक टाइम में कि 2 वे ट्रैफिक ज़्यादा होती है. सब तरह के एनालिसिस कर सकते हैं हम इसको यूज़ करते हुए. फिर देन आपका सोशल मीडिया पोस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, आपके डिजिटल पिक्चर्स, वीडियोज़ जो आप स्मार्टफोन्स में कैप्चर करते हो, तो उसका डिजिटल पिक्चर्स और वीडियोस आप अपलोड भी करते हो. कई बार आप गूगल ड्राइव में अपलोड करते हो, ड्रॉप बॉक्स में अपलोड करते हो, फ्रेंड से शेयर करते हो, ऑनलाइन डालते हो, फेसबुक में डालते हो. सो वो सारा जो डिजिटल डेटा है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है. तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है बिग डेटा का कि ये जो सारे पिक्चर्स और वीडियोज़ आ रहे हैं. परचेज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, मीनिंग अगर आप फ्लिपकार्ट में कुछ खरीद रहे हो, तो अगर आपने जैसे फ्लिपकार्ट में कुछ भी खरीदा, स्नैपडील में कुछ भी खरीदा, तो क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाता है, तो और उस ट्रांजैक्शन को भी डेटा कहते हैं. तो हर एक ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड हो रहा है उसका भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोरेज हो रहा है. और उसमें भी हर डेटा में अगर आप ये सारे डेटा अगर आप देखोगे, हर डेटा के अंदर कुछ ना कुछ इनसाइट बढ़ा हुआ है. इनसाइट मीनिंग, इनसाइट का मतलब ये कि कुछ ना कुछ एक इंफॉर्मेशन वैल्यू है. अगर मैं आपके कॉलेज का एग्जांपल लूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. सपोज आपके कॉलेज 2000 में स्टार्ट हुआ था, तो 15-14 साल हो गए. 14 साल में सपोज इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में आया, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, ग्रेजुएट किया है, पास किया है, और हजारों स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे वेरिएबल्स रहे हुए. वेरिएबल्स मीनिंग कि हर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल था. से एक स्टूडेंट का नाम ये था, स्टूडेंट का जेंडर ये था, स्टूडेंट का एज ये था, स्टूडेंट का प्लेसमेंट मिला तो पैसे कितने मिले उसको, स्टूडेंट का एक कितना उसमें स्टूडेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट था, कितना स्टूडेंट ने कितने साल में पास आउट किया, कितने कोर्सेज लिए. सारे वो डेटा जो है, वो सारे के सारे डेटा जो है वो कहीं अगेन कॉलेज के डेटाबेस में स्टोर हो गए ना. उस डेटाबेस में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वैल्यू है. सपोज आपके कॉलेज के अथॉरिटी को ये डिसाइड करना है कि मुझे नेक्स्ट ईयर का प्लेसमेंट जो है काफ़ी इंप्रूव करना है लास्ट कितने सालों में, तो वो क्या कर सकते हैं कि उस पुराने जो कॉलेज का जो खुद के डेटा है उनको वो एनालाइज कर सकते हैं. उनको ये देख सकते हैं कि अगर कोई बंदा कंप्यूटर साइंस कर रहा है वर्सेस कोई बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, किसी को कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में 60% आता है, किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 65% आता है, तो उसका प्लेसमेंट का फोरकास्टिंग क्या है और किस तरह के उनको एम्प्लॉयमेंट, किस तरह के जॉब पैकेज मिलने के चांसेस हैं. सो अगर आप ये सब देखोगे तो मतलब डेटा में, हर डेटा में
एक इंसाइट बढ़ा हुआ है, एक कुछ एक इंफॉर्मेशन वैल्यू हिडन है। और एज एन एनालिस्ट व्हाट यू ट्राई टू डू इज यू ट्राई टू रीड दोज पैटर्न्स, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस डेटा को यूज करके हम फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस स्लाइड में मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि आप देखोगे कि कितना वेलोसिटी से हम डेटा को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, मैं वापस से पीछे स्लाइड में जा रहा हूं। मुझे एक क्लास से एक जनरल क्वेश्चन है, आप कोई भी क्लास में से कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि जैसे मैंने बताया कि सेंसर्स का डेटा हो गया, ट्रैफिक सेंसर्स का, मैंने बताया सोशल मीडिया पोस्ट का डेटा हो सकता है, मैंने बताया आपके स्मार्टफोन का पिक्चर्स एंड वीडियोस हो सकता है, मैंने बताया कि आपके परचेज ट्रांजैक्शंस का डेटा हो सकता है, आपके सेलफोन में जीपीएस का डेटा हो सकता है। लेकिन आप और भी कोई तरह के डेटा के सोर्स को आप कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है क्या? एनी अदर सोर्स विच प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट वी फेस ऑन अ डेली बेसिस, एनीवन? कोई और ऐसा बिग डेटा का सोर्स है जो कि मैंने मिस आउट किया है यहां पे? Railway inquiry, very good. Whoever said that, very good answer. Why? Because on a daily basis, आपको किसी को अंदाजा है कितना हम रेलवे इंक्वायरी करते हैं? हर एक दिन में हम 20 लाख रेलवे इंक्वायरीज करते हैं। एंड 20 lakhs इज ए वेरी स्मॉल फिगर एक्चुअली इफ यू थिंक ऑफ इट, क्योंकि रेलवे जो है ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन को केटर करता है इंडिया के। 60% पॉपुलेशन का मतलब है कि 60 करोड़ पॉपुलेशन को केटर करता है। उसमें 60 करोड़ में से आप देख रहे हो कि खाली 20 लाख ट्रांजैक्शन किए तो भी कितना सारा ट्रांजैक्शन हुआ। तो मतलब आप सोच के देखो, 20 लाख एक दिन का ट्रांजैक्शन है, और वही अगर आप पूरे महीने का ट्रांजैक्शन लोगे और अगर पूरे साल का ट्रांजैक्शन लोगे, 10 साल का ट्रांजैक्शन लोगे, तो रेलवे का जो डेटाबेस है कितना बड़ा हो सकता है। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है जनरल ऑडियंस है वहां पे, कि ये जो रेलवे का जो डेटा है 20 लाख ट्रांजैक्शन या जो भी ट्रांजैक्शन का डेटा है एवरी डे, उस डेटा में क्या हिडन इनसाइट हो सकते हैं? कोई मुझे एग्जांपल दें कि उस डेटा को हम एनालाइज करके हम क्या फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। व्हाट कैन वी प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर बाय एनालाइजिंग रेलवेज एवरीडे ट्रांजैक्शन डेटा? एनीवन? very good answer there, that you can predict in which route the demand is higher, in which route the demand is lower, which trains are more preferred by passengers, which day of the week is the day when we actually make more number of reservations, which month of the year we actually get more reservations, and ये सब चीज़ें, ये तो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हो गई। बट अब इसी के ऊपर वो ये एनालाइज, अभी अब रेलवेज क्या करने वाले हैं थोड़े दिनों में, वो ये ट्राई कर रहे हैं कि डायनेमिक प्राइसिंग करें। सो डायनेमिक प्राइसिंग का मतलब है कि अगर आपने ट्रेन के 2 दिन पहले टिकट कराया तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा, जैसे जैसे प्लेन में होता है। तो जो डायनेमिक प्राइसिंग का मॉडल है वो पूरा का पूरा बिग डेटा एनालिसिस के ऊपर बेसिस रहता है, कि अगर आपको ये पता है कि ये ट्रेन ज़्यादा हाई डिमांड वाली ट्रेन है तो उसमें आप, सॉरी क्या ऑडियो में प्रॉब्लम है क्या? ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जो आपने, मतलब आप रेलवे का जो डेटा है उसको लेके वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस ट्रेन का फेयर कितना होना चाहिए, इस ट्रेन में कितनी ऑक्यूपेंसी होने के चांसेस हैं इस डे ऑफ द वीक में, राइट? प्लस ये तो खैर टिकट प्राइसिंग की बात हो गई, बट अगर आप सेफ्टी के बारे में बात करोगे, सो रेलवे में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारा डेटा है बहुत सारे एक्सीडेंट्स का। सो उन सारे एक्सीडेंट्स को इफ दे एनालाइज, देन दे कैन फिगर आउट व्हाट आर द मेन टिपिकल कॉमन मेन रीजंस अक्रॉस मोस्ट ऑफ दीज एक्सीडेंट्स दैट हैपन। एंड अगर उनको ये पता चल जाए कि नॉर्मली एक्सीडेंट्स होते हैं रात के टाइम में, शाम के टाइम में, सो दे कैन टेक मोर प्रिकॉशंस ड्यूरिंग इवनिंग, ड्यूरिंग नाइट टाइम्स, right? Or they can have better facility, better safety precautions
ड्यूरिंग इवनिंग टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। सो अगेन कहने का ये मतलब है कि आपके हर ट्रांजैक्शन जो आप कर रहे हो, हर ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ हिडन वैल्यू है, और कंपनीज, एनालिस्ट, दे आर सिटिंग देयर टू एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन वैल्यू हिडन इन योर ट्रांजैक्शन, और जिससे कि हम आपको, कई बार कंपनी से बोलते हैं हमें बेटर कस्टमर सर्विस देना है, इसके लिए हम डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हमें सेफ्टी प्रोड्यूस, हमने सेफ्टी बेटर करना है, तो इसलिए डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। या कई बार कई बार ऑडियंस ये, कई बार कंपनीज ये जानना चाहती हैं कि हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उन सब कस्टमर्स में कौन से कस्टमर्स ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूबल है, कौन से कस्टमर कम हमारे लिए वैल्यूबल है। सो काफ़ी सारा एप्लीकेशन आ जाता है बिग डेटा का। अगेन बिग डेटा इज गेटिंग बिगर फास्टर एवरी डे। अगर आप ये देखोगे कि अगर 2003 तक जो हमने डेटा जनरेट किया था, वो हमने जनरेट किया था ऑलमोस्ट 5 बिलियन गीगाबाइट्स, राइट। बट 2014 में सेम अमाउंट ऑफ डेटा, दैट मीन्स 5 बिलियन गीगाबाइट्स ऑफ डेटा हम फ्यू सेकेंड्स में जनरेट करते हैं। कहने का ये मतलब है कि जो डेटा का जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, साथ में स्पीड, वेलोसिटी इज ऑल्सो सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग। सो दैट इज वाई हम जब भी बिग डेटा के बारे में बात करते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज बिग डेटा, राइट, तो अगर आपको किसी को डिस्क्राइब करना है लेमैन टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, तो हम उसको 3 पैरामीटर से डिस्क्राइब करते हैं। पहला पैरामीटर बोलते हैं वॉल्यूम, दैट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज वेरी वेरी ह्यूज, राइट। सेकेंड पैरामीटर हम बोलते हैं कि भाई वेलोसिटी, दैट मीन्स द स्पीड विथ विच, आई नो एवरीवन इज एन इंजीनियर सो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट वेलोसिटी स्टैंड्स फॉर, बट मेन फंडा ये है कि इतना जल्दी जल्दी हम डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे आपने देखा पहला स्लाइड में कि हर 60 सेकेंड्स में हम 7 लाख गूगल इंक्वायरीज कर रहे हैं, हम 117 करोड़ ईमेल्स भेज रहे हैं, हम 5 लाख फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, हम हजारों वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। सो जितना वेलोसिटी है, इतना स्पीड है, जो आपका जो भी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है या फिर जो आपका जो भी एनालिसिस टेक्नोलॉजी है, उसको इतना रॉबस्ट होना पड़ता है, इतना स्केलेबल होना पड़ता है कि जितना डेटा आते जाए उतना ही जल्दी जल्दी वो स्केल बढ़ता जाए। सो इसलिए उसको हम कहते हैं कि वॉल्यूम, एंड सेकेंड इज वेलोसिटी, एंड थर्ड इज वेराइटी। सो वेराइटी मीनिंग, एनी एग्जाम्पल ऑफ वेराइटी गाइस? I have discussed about variety. Anyone who can give me example of what does variety stand for here? नहीं, फिजिकल डेटा, लॉजिकल डेटा तो आप डेटाबेस का ग्रुपिंग बता रहे हो, वो नहीं। और भी बहुत सिंपल चीज़ है। वैरायटी ऑफ डेटा मतलब मीनिंग क्या? किस, आप खुद ही सोचो कि आप किस किस तरह के डेटा को आप प्रोड्यूस कर रहे हो एवरी डे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल्स, so your videos, your pictures, your bank transactions, credit card transactions, टेक्स्ट फाइल्स आपके जो आपके कंप्यूटर्स में होते हैं, एक्सेल फाइल्स, वर्ड फाइल्स, दीज आर ऑल डेटा, राइट। एंड वी आर प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, प्लस नॉट जस्ट दीज फाइल टाइप्स, बट आप ये भी सोचो कि फेसबुक का डेटा है, यूट्यूब का डेटा है, लिंक्डइन का डेटा है, ट्विटर का डेटा है, सेंसर्स का डेटा है, ये सारे तरह तरह के डेटाज ही हैं। सो आपका जो डेटा, बिग डेटा का जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसा होना चाहिए, या आपका जो फ्रेमवर्क है वो ऐसा होना चाहिए कि सारे तरह के डेटा को वो स्टोर भी कर सके, वो मैनेज भी कर सके, और साथ में आप उसको एनालाइज भी कर सके। अगर वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, देन आपका जो बिग डेटा का फ्रेमवर्क आपने बनाया है वो कोई काम का नहीं है। अच्छा guys, what I'm going to do is, I've been told that a little bit of voice cracking is there, so I'm just going to take 1 minute break, and then we are going to dial in again. Okay, just give me one minute break and I'm going to dial in again.
सिद्धार्थ वो कनेक्ट कर रहे हैं क्या फ़ोन को? कर रहे हैं ना? ठीक है ना? शुड आई कॉल देम? यस. हाँ, so Neil, have you connected it now? You all are speaker. Okay, good, great. All right, guys. I think this is going to be better than the last time. I think there was a little bit of voice cracking there. Okay, so as I was saying, the three V's which describe big data are volume, velocity. Volume is amount, the size; velocity, the speed; and the variety is different types of data that is coming along. Now, yeah, so now remember one more thing, since you guys are engineers, right? So, and I was told that most of you are computer science aspirants. So, what I'm going to do is I'm going to talk about some very, very important technologies in terms of big data. But I do not expect, मैं ये नहीं expect कर रहा कि सब कोई आप लोग एकदम समझ में आ जाएगा आप लोगों को सब कुछ एक बार में मतलब आपको ये छोटे से सेमिनार में आपको सब कुछ समझ में आना ज़रूरी है. बट लेकिन मैं क्या करूँगा कि इन टेक्नोलॉजी जो भी अगर आप कोई भी अगर आपको सपोज कोई कंपनी आया वो अगर आपको पूछे कि व्हाट इज़ बिग डेटा, तो आपको खाली इतना बोल पाना आना चाहिए कि भाई बिग डेटा का मेन टेक्नोलॉजीज क्या है, मेन एप्लीकेशन क्या है, एंड हाउ डू वी डिफाइन बिग डेटा. अगर आप वो कर पा रहे हो सो एटलीस्ट एट दिस लेवल यू शुड बी at least to start with, at least you can start talking about it. Yes? Yes, Neil, tell me. Neil, tell me. Neil? क्या बोल रहे हैं? Okay, all right. Yes, Neil, can you hear me? Yeah, can you hear me, Neil? Yeah, Neil, can you hear me? Neil, can you hear me? Yeah, Neil, can you hear me? Can you hear me now? Very loud and clear? All right. So, you have connected to the speaker system, right? Okay, good. So, should I start? All right, guys. So, as I was saying, since most of you are computer engineer aspirants, so I'm going to talk about very simple but very important big data technologies. Okay, and because you see, the idea is not to make you understand all the technical details about big data. However, you should know some of the key technologies and what they are, and you should be able to talk about them, right? So, when we talk of big data, right, since the data is getting generated in huge amount and the velocity is so high, so we cannot just store the data in the traditional database. Is there anyone who can who doesn't know about database? Everyone understands what database is, right? Okay, great. So in database, yeah, great. So okay. All right. So traditional database, what happens is, in database you'll have lot of tables and each table will have rows and columns. मतलब हर एक टेबल के अंदर एक रो और एक काफ़ी सारे रोज होते हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स होते हैं. तो अब उसमें क्या है कि जो ट्रेडिशनल डेटाबेस आपके ट्रांजैक्शन डेटा, जैसे सपोज आपने बैंक में अकाउंट खोला तो बैंक वाले ने आपसे अकाउंट डिटेल्स के लिए सारे इन्फॉर्मेशन लिए, तो हर एक कस्टमर के लिए एक एक रो वहाँ पे टेबल में क्रिएट होता जाएगा. तो वो ट्रेडिशनल डेटा के लिए डेटाबेसेस, रिलेशनल डेटाबेसेस वर ऑल राइट. जो रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं वो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के लिए ठीक है. बट जब भी हम बिग डेटा के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे डेटा का टाइप्स इतना वैरायटी है
और इतना वॉल्यूम ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस आर नॉट सफिशिएंट। तो हम क्या करते हैं कि एक ट्रेडिशनल डेटाबेस में क्या होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रल बड़ा सारा डेटाबेस रहता है, इट्स लाइक ए बिग ड्रम, राइट। उस बिग ड्रम के अंदर जो है सारा डेटा आपका जाता जाता है। बट बिग डेटा में क्या करते हैं हम कहते हैं कि एक ड्रम इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस, बिकॉज आज एक ड्रम का रिक्वायरमेंट है, कल बहुत सारे ड्रम्स का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो वो क्या करते हैं उसमें कि वो करते हैं कि हम कई सारे छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाते जाएंगे, मतलब छोटे छोटे मशीन्स बनाते जाएंगे। मशीन, और कैसे मशीन है ये जो छोटे मशीन है वो समझ लीजिए कि आपके घर का लैपटॉप और आपके घर के पीसी, मतलब जिसमें 1 टेराबाइट का स्पेस होगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर होगा, और वो क्या होगा कि जितने आपका जैसे जैसे डेटा का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, तो बीच में मैं आपको एक नए स्लाइड में समझाता हूँ, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके बिना क्या होता है कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड हो जाती है। सो मैं एक आपके नए स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली वो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सी, ट्रेडिशनल डेटाबेस में क्या होता था कि एक सेंट्रल में एक बहुत बड़ा सारा डेटाबेस रहता था और उसके अंदर सारे डेटा को हम डालते रहते थे। सो दिस यूज टू बी ट्रेडिशनल डेटाबेस, जिसमें बहुत बड़ा ड्रम है और सारे ड्रम में हमने डेटा डाला। बट बिग डेटा में क्या होता है, बिग डेटा में हम कहते हैं कि एक सेंट्रल ड्रम, दिस इज ट्रेडिशनल डेटाबेस, ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस, SQL रिलेशनल डेटाबेस। बिग डेटा में क्या होता है कि एक सेंट्रल डेटाबेस नहीं रहता, उसमें हम कहते हैं कि एक मास्टर नोड है जिसको पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ जा रही है, और जो सोर्सेज, जो डेटा के सोर्सेज हैं, डेटा का जो सोर्सेज है, मल्टीपल सोर्सेज, वहाँ से डेटा आ रहे हैं, से डेटा DS1, डेटा सोर्स 2, डेटा सोर्स 3, एंड वट एवर द डेटा सोर्सेज आर, सो ऑल द डेटा इज कमिंग टू मास्टर डेटा, मास्टर नोड, एंड यहाँ से क्या होता है कि वो छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड होता जाता है। और हर क्लस्टर में क्या होता है कि सपोज आपके कंप्यूटर जितना बड़ा छोटे छोटे मशीन्स लगे रहते हैं, और हर क्लस्टर में ऐसे ही होता है। तो अब इसमें क्या फायदा है, इसको हम कहते हैं, इस तरह का डेटा को हम इस तरह का वो उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें फायदा क्या होता है कि आपका एक सेंट्रल डेटाबेस, जो कि एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता था और जिसमें रिक्वायरमेंट जैसे बढ़ते जाती थी, आप बोलते थे एक और नया बड़ा ऐड करेंगे, बट बड़ा डेटाबेसेस ऐड करने में एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, रिसोर्सेज बहुत कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत हाई स्किल्ड रिसोर्सेज लगते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, प्लस अगर एक बड़ा डेटाबेस खराब हुआ तो मतलब सारा आपका डेटा खराब हो जाता है। वेरे जब पैरेलली हम स्टोर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ता जाता है, आप उसको जितने, सपोज आज आपको 100 कंप्यूटर का ज़्यादा डिमांड पड़ा, स्मॉल छोटे छोटे कंप्यूटर, तो आप वो 100 जल्दी जल्दी डालोगे। तो इसमें क्या है कि नोड है, सारे नोड्स हैं, इनको हम कहते हैं नोड्स, डिफरेंट नोड्स, और बीच और एक मास्टर है जिसको सब पता है कि वो डेटा कहाँ जा रहा है। सपोज आज आपने फेसबुक में पोस्ट डाला, सपोज आज के फेसबुक पोस्ट में सपोज आज 1 करोड़ फेसबुक पोस्ट हुए, तो 1 करोड़ फेसबुक पोस्ट आज का जो है वो बोलेंगे आज का जो क्लस्टर है सारा N2 नोड्स में जा रहे हैं, तो सारे के सारे डेटा आज के फेसबुक पोस्ट के N2 क्लस्टर्स में गए। अगर आपको कल आपको कोई रिपोर्ट क्रिएट करना है कि आपको ये जानना है कि कल के दिन में आपको ये जानना है कि एक पर्टिकुलर रीजन से कितने फेसबुक पोस्ट आए, मतलब एक सिंपल रिपोर्ट, तो आप ये बोलोगे अच्छा उस कितने कौन से दिन का है, तो मास्टर को बोलोगे मुझे इस दिन का डेटा चाहिए, तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा N2 से आपको डेटा सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। सो ट्रेडिशनल डेटाबेस एंड प्लस बिग डेटा डेटाबेस में मेन डिफरेंस ये है कि ट्रेडिशनल में आपका एक सेंट्रल डेटाबेस होता था, और बिग डेटा में क्या होता है कि सारी चीज़ें पैरेलल होती हैं, स्टोरेज भी पैरेलल हो रहा है, और प्रोसेसिंग मतलब जब आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है तो वो भी पैरेलली हो रहा है। सो बिग डेटा में तभी ट्रेडिशनल डेटाबेस में सपोज हम लोग SQL यूज करते थे, तो बिग डेटा में हम यूज करते हैं NoSQL, विच इज बेसिकली it's just a term given to a methodology to retrieve the data from a parallel environment। अगर इस पैरेलल एनवायरनमेंट से हमें डेटा को रिट्रीव करना है, सो उसका जो मेथडोलॉजी है उसको हम NoSQL कहते हैं। सो NoSQL के थ्रू हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं फ्रॉम द पैरेलल सर्वर फार्म्स दैट वी हैव क्रिएटेड।
सो डेटा रिट्रीवल अपने करते हैं नो एसक्यूएल के थ्रू। एच बेस का मतलब है हडूप, हडूप हडूप डेटाबेस विच इज पार्ट ऑफ हडूप प्लेटफॉर्म विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सो नो एसक्यूएल, ये सारी टेक्नोलॉजी जो है नो एसक्यूएल टेक्नोलॉजीज हैं, कैसेंड्रा, मैंगो डीबी, रिएक्ट, couchdb and so many different technologies are there. So basically main idea of NoSQL is कि जब आपका parallelly data stored है तो उसको retrieve कैसे करें, so उस methodology को NoSQL methodology कहते हैं। और जो Hadoop आप काफ़ी बार सुने भी होंगे Hadoop के बारे में, तो Hadoop का मतलब ये जो एक आपका जो ये पैरेलल इकोसिस्टम बना, मतलब एक फ्रेमवर्क बना, मतलब सपोज आप एक क्लास में बैठे हुए हो आज के दिन में, और एक उस क्लास के अंदर आप देखोगे कि काफ़ी सारे चेयर्स हैं और बहुत सारे चेयर्स इंटरकनेक्टेड हैं एंड सो फोर्थ। सो वो जो क्लासरूम है जिसमें सारे चेयर्स बैठे हुए हैं, सारे चेयर्स इंस्टॉल्ड हैं, उस फ्रेमवर्क को इन बिग डेटा हम कह देंगे कि हडूप है वो। मतलब ये जितना भी पैरेलल प्रोसेसिंग के कारण पैरेलल स्टोरेज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, जितने सर्वर्स हैं सारे जो हैं वो एक हडूप फ्रेमवर्क के अंदर डले हुए हैं। ओके गाइस, हडूप समझ में आया क्या क्या होता है हडूप? एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट हडूप इज? एनीवन? किसी को ये समझ में आया हडूप क्या होता है? किसी को समझ में नहीं आया? किसी को भी समझ में नहीं आया बेसिकली? इज दैट आई एम हियरिंग सिद्धार्थ? So should I repeat it quickly? अच्छा, ठीक है। एनीवे, सो बेसिकली हडूप जो है एक पूरा इकोसिस्टम है जहां पे ये सारे बिग डेटा का जो टेक्नोलॉजी है सारे वो होस्टेड रहते हैं, ठीक है। और नो एसक्यूएल जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आपका जो बिग डेटा में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको रिट्रीव किया जाता है। और अभी तक हमने ये बात किया कि स्टोरेज कैसे हो रही है। अभी एनालिसिस, जब भी डेटा को एनालाइज करना है तो उसको क्या चीज़ से एनालाइज करते हैं, तो उसी में क्या होता है कि सैस पिक्चर में आता है और आर पिक्चर में आते हैं। सैस का मतलब है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, जिसमें बहुत अच्छे फार्मूलाज डले हुए हैं ऑलरेडी, बहुत अच्छा इजी कोडिंग है जिसमें से आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बहुत क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और रिपोर्ट्स के थ्रू फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या डिसीजन नेक्स्ट डिसीजन लेना है। और उसके बाद आर, नाउ सैस इज owned by a company and R is open source, so R is also becoming very famous nowadays, but they exactly do the same thing as SAS does. थोड़ा R में प्रोग्रामिंग ज़्यादा है SAS के मुकाबले, so R is open source, so it is little more technical than SAS, but R क्योंकि free है और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक फेसबुक, लिंक्डइन, याहू, दे आर ऑल सपोर्टिंग R in big way, so that is why R has become very popular. So these are the four main technology: NoSQL, Hadoop, SAS and R. NoSQL and Hadoop are for storage and retrieval, and SAS and R are for analytics, for analysis. So अभी मेरे को ये आप समझाइए कि एक जो लार्ज कंपनी है वो बिग डेटा का क्या एप्लीकेशन हो सकता है, वो क्यों चाहेगी कि मैं बिग डेटा को यूज़ करूं या बिग डेटा के एप्लीकेशंस को यूज़ करूं या डेटा को मैं एनालाइज करूं। सो उनके पास तीन मेन रीज़न है यूज़ करने के बिग डेटा। पहला रीज़न है कि उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। हाउ? क्योंकि आपके कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बेटर हो सकता है, आपका इंक्रीज रेवेन्यू हो सकता है, क्योंकि आप फोरकास्ट कर सकते हो कि कस्टमर को नेक्स्ट मंथ क्या चाहिए होगा, वो आप फोरकास्ट कर पा रहे हो।
तो आपका क्या है कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, आपका एक मार्केटिंग में एक्सपेंस वगैरह जो है वो कम हो जाता है, आपका मार्केटिंग का रिटर्न्स बेटर हो जाता है। ओवरऑल आप क्या कर सकते हो कि आप ओवरऑल एक बहुत अच्छे, बहुत इन्फॉर्म्ड, बेटर बिजनेस डिसीजंस ले सकते हो। So, because of competitive advantage, because of better business decisions, because of better customer satisfaction, increased revenue, effective marketing, इसीलिए कॉर्पोरेट जो है इतना पैसा आज के दिन में इसमें डाल रहे हैं। सो बिकॉज आज के दिन में हिडन पैटर्न को अगर आप एनालाइज कर लेते हो तो आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो उसका मेन एडवांटेज यही है कि फ्यूचर में एप्लीकेशन क्या है, और फ्यूचर में आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई हमारा एफिशिएंसी कहाँ पे आने वाला है। इसीलिए इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है इसमें पैसा डालने को तैयार है। अच्छा, हाँ जी, या ओके ओके गाइज, अभी मैं आपसे ना बहुत सिंपल चीज़ें मैं आपसे पूछने वाला हूँ। मुझे आप ये समझाइए कि एक छोटे से फार्मेसी चेन में एनालिटिक्स का क्या एप्लीकेशन हो सकता है? कोई एनीवन? मेडिकल शॉप्स में? ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, व्हाट एल्स? ओके, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत एक सिंपल सी चीज़ है। अगर आप सपोज एक मेडिकल शॉप रन कर रहे हो, तो आपका मेन आपका बिजनेस का मेन पॉइंट क्या है? आपका मेन पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने मेडिकल शॉप में वो मेडिसिन रख सकूं जो कि मेरे कस्टमर्स को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ। तो अगर आप ये सोचो कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा एनालिसिस का कोई टूल है, कोई सॉफ्टवेयर है, या कोई मेरे लिए ऐसा कोई एनालिसिस कर सके जिसमें हमने पूरे 5 साल, सपोज मेरा मेडिकल शॉप 5 साल से चल रहा है, तो मैंने 5 साल का मेरे पास डेटा है। बिकॉज डेटा क्यों है? क्योंकि मैंने जब भी मेडिसिन बेची तो मैंने कंप्यूटर का उनको कंप्यूटर में एक डेटा स्टोर करके मैंने कंप्यूटर से प्रिंट आउट देके कस्टमर को दिया। तो क्या हो गया, सारा डेटा जो है मशीन में जाके अल्टीमेटली डेटाबेस में स्टोर हो गया। तो अगर कोई मेरे डेटाबेस को एनालाइज करके मुझे ये बता पाए कि अभी नेक्स्ट महीने दिसंबर का महीना आने वाला है, उस दिसंबर के महीने में मेरे पास ऐसे 10 मेडिसिन कौन से होने चाहिए जो कि एकदम डेफिनेटली हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम में होने चाहिए। एक सिंपल सा एप्लीकेशन है इन्वेंट्री में हमारे पास, स्टॉक में हमारे पास 10 ऐसे कौन से मेडिसिन हों जो कि जरूर होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट महीना दिसंबर का है। कोई एनालाइज करेगा, कोई ये बोलेगा कि हाँ कोल्ड के मेडिसिन होने चाहिए, कोई ये बोलेगा कि हाँ कफ के मेडिसिन होने चाहिए, फीवर के मेडिसिन होने चाहिए। बट अगर आप पास डेटा एनालाइज करोगे तो आपको कई बार ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि कोई आदमी ऐसे सोच नहीं सकता था। आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा है, आपको हॉर्लिक्स भी ज़्यादा रखना है, आप कॉफ़ी बेचते हो मेडिकल शॉप में, आपको कॉफ़ी भी ज़्यादा रखना है, नेस्कैफे के प्रोडक्ट, आप क्रीम रखते हो, मॉइस्चराइजर रखते हो तो मॉइस्चराइजर भी ज़्यादा रखना है, आप शैम्पू कंडीशनर रखते हो तो कंडीशनर भी ज़्यादा रखना है, क्योंकि विंटर में वो ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं। ऐसा डेटा बोल रहा है। सो क्या होता है कि डेटा बोलने से
आपका डेटा एनालिसिस के कारण ये जो फार्मेसिस्ट मेडिकल शॉप जो चला रहा है, वो बंदा अपना पैसा जो लगाना है उसको, सपोज उसको 10 लाख रुपए का मेडिसिन खरीदने हैं जो कि बेच पाए, तो वो सही मेडिसिन खरीदेगा वर्सेस की रॉन्ग मेडिसिन खरीदे। तो एनालिटिक्स में क्या होता है कि कोई भी बड़ी कंपनी है, जैसे मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे कोको कोला ने वर्ल्ड वाइड अपना, अभी आप जैसे आपको पता होगा कि कोको कोला का कैंपेन क्या चलता है, ओपन हैप्पीनेस चलता है। कोको कोला का जो मेन टैगलाइन है आज के दिन में वो है ओपन हैप्पीनेस, राइट? यस यस, बोलिए क्या चीज से रिलेटेड है? हाँ नहीं नहीं, हाँ जी, नहीं, अच्छा, हाँ अभी हाँ हाँ, बट ये क्वेश्चन जो है इट्स अ गुड क्वेश्चन जिसने भी पूछा है। अभी ये मतलब सो मेन क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास डेटा का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है तो हम डेटाबेस को ही बढ़ाते क्यों नहीं जाते? बट अगर आप ये सोचिए कि ट्रेडिशनल डेटाबेस में जिस तरह से जो उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या होता था कि एक बड़े सारे आप डेटाबेस सर्वर खरीदते थे, और डेटाबेस सर्वर में सपोज आपने ऑरेकल का 10G डाला, 9i डाला, 11G डाला, या फिर MySQL डाला, या कोई भी एक डेटाबेस डाला, डेटाबेस सर्वर के ऊपर एक डेटाबेस एप्लीकेशन डाला। उसके बाद आप बोलते थे कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी डेटा है उस डेटाबेस के अंदर डालते जाओ। वो जो डेटाबेस बना हुआ था, ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चरिंग थी रिलेशन डेटाबेस का, वो क्या है, एक दिन में सपोज 10 लाख ट्रांजैक्शन हैंडल कर लिया, चलो अच्छी बात, 20 लाख ट्रांजैक्शन हैंडल कर लिया, चलो वो भी अच्छी बात, 1 करोड़ हैंडल कर लिया, उसके बाद क्या, अच्छा ठीक है हैंडल कर पा रहे हैं, बट लेकिन क्या है ना, डेटाबेस अब साइज बहुत बड़ा होते जा रहा है। प्लस हम 1 करोड़ एक दिन में 1 करोड़ ट्रांजैक्शन का भी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहां पे 400-500 करोड़ ट्रांजैक्शन एक एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज फेसबुक, 1 मिनट के अंदर 5 लाख कमेंट्स हो रहे हैं। और आप ये सोचो कि 1 घंटे में कितने कमेंट्स होंगे और 1 दिन में कितने कमेंट्स होंगे, तो आप ये देखोगे कि कितने करोड़ रो सेट्स उसमें बढ़ते जाएंगे। जो आपका ट्रेडिशनल डेटाबेस है वो बहुत स्लो हो जाता है उसके कारण। अब जब आप गूगल में आप सर्च करते हो, तो आपने सपोज सर्च किया व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स, तो आपको गूगल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपको रिजल्ट देता है, साथ में ऊपर एक इंफॉर्मेशन भी देता है कि वी लुक्ड इनटू 20 करोड़ वेबसाइट्स एंड देन वी गॉट 20,000 रिजल्ट्स फॉर यू इन लेस देन हाफ ए सेकेंड। नाउ अगर वही चीज, अगर वो सारे वेबसाइट्स का डेटा अगर वो ट्रेडिशनल डेटाबेस में रखता, तो उसको वही चीज मतलब 20 करोड़ वेबसाइट के डेटा को एनालाइज करने में और सर्च को मैचिंग करने में उसको आराम से 2-3 घंटे लग जाते हैं। बट वो 2-3 घंटा उसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप कस्टमर की तरह आप जब गूगल में सर्च कर रहे हो तो आप 2 घंटा या 3 घंटा वेट नहीं करोगे। आप चाहोगे मैंने गूगल में क्वेरी डाली और क्वेरी सेकेंड्स में वापस आ जाए। So that is one of the main reasons why we do not use traditional database, because it is inherently very slow when it comes to handling very large amount of data. देखिए फार्मेसी के लिए बिग डेटा की जरूरत प्रॉब्ली नहीं है, फार्मेसी के लिए स्मॉल डेटाबेस है और उसी का एनालाइज कर लो तो भी चल जाएगा। बट अगर आपके लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज आप आईसीआईसीआई बैंक बोलो, तो आप उसके रोज के दिन में कितना डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? तो उसको हैंडल करने के लिए उसको हैंडल करने के लिए जो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस है वो काफ़ी स्लो बन जाती है उसके कारण। प्लस ट्रेडिशनल डेटाबेस में एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये भी है कि सिंस एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन वन सिंगल लार्ज डेटाबेस, अगर वो डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप देखोगे कि आपका सिस्टम डाउन हो गया। कई बार रेलवेज में आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो बट सिस्टम नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि डेटाबेस इज डाउन। तो एक डेटाबेस का रिलायंस में क्या है कि ये भी प्रॉब्लम है, फॉल्ट टॉलरेंस होती है कोई बात, फॉल्ट मतलब कितनी एरर्स हैंडल कर सकते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस एक सिंगल डेटाबेस वाला प्लेटफॉर्म में ट्रेडिशनल डेटाबेस में बहुत कम होती है। वेरस पैरेलल डेटाबेसेस अगर हैं तो आप रेप्लिकेशन करके डेटा को रेप्लिकेट करके कई जगह आराम से स्टोर कर सकते हो, क्योंकि उसका उतना कॉस्ट नहीं होता और उसको मैनेज करना भी बहुत ईजी है।
तो इसके कारण फॉल्ट टॉलरेंस भी काफ़ी बढ़ जाती है। एक जगह एक खराब हुआ नोड, कोई बात नहीं, दूसरे नोड में वो डेटा मिल जाएगा। So because of these two reasons, why the bigger companies which produce large amount of data, they use big data technologies, right? So मतलब कहने का ये मतलब है कि एक एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट में, मतलब अगर जो कंपनी होती है, सपोज उसको सपोज ये एनालाइज करना है कि यार हमारा जो हम जो ये एक नई मेडिसिन हम एक मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, उस मेडिसिन से कितने लोगों का फ़ायदा होगा। सपोज एक पोलियो की नई मेडिसिन एक अफ्रीकन कंट्री में हमने लॉन्च किया, तो उस मेडिसिन से कितने लोग बेनिफिट कर पाएंगे, ऐसा उनको फोरकास्ट करना है। तो वो एक बिजनेस प्रॉब्लम होएगी कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम ये है कि हम एक नई मेडिसिन डाल रहे हैं मार्केट में और वो कितने लोगों को बेनिफिट करेगी, ये फोरकास्ट करके हमें बताएं प्लीज़। तो अब एनालिटिक्स प्रॉब्लम में क्या होगा कि एक एनालिटिक्स की टीम होगी जिसमें सपोज एक डेटा एनालिस्ट होगा या 2-3 डेटा एनालिस्ट होंगे जो कि बहुत अच्छे इंजीनियर्स माने जाते हैं नॉर्मली, जिनको टूल, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये सब चीज़ों के बारे में अच्छा पता हो। फिर 1-2 आदमी बिजनेस एनालिस्ट रहेंगे और 1-2 आदमी स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट रहेंगे। सो 2 से 3 डेटा एनालिस्ट, एक बिजनेस एनालिस्ट और एक स्टैटिस्टिशियन एनालिस्ट लेके एक टीम बनाएंगे जो वो ही बोलेगी कि अच्छा ये बिजनेस प्रॉब्लम है और इस तरह का डेटा हमारे पास डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो अब जो बिजनेस एनालिस्ट है वो बोलेगा डेटा एनालिस्ट को कि आप ऐसा करो कि आप टूल्स से, जो आपके पास बिग डेटा के जो टूल्स हैं उससे आप मेरे को एनालाइज करके ऐसा रिपोर्ट क्रिएट करके दो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हमने सिमिलर अफ्रीकन कंट्रीज में लास्ट टाइम जब ये इस तरह के मेडिसिन को लॉन्च किया था तो वो कितने लोगों को फायदा हुआ था उससे और कितने लोगों को फायदा नहीं हुआ था, ऐसा रिपोर्ट हमें ला के दो। तो अभी क्या बिजनेस एनालिस्ट के पास वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट एक आदमी ऐसा है जिसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, थोड़ा सा कंप्यूटर्स के बारे में, थोड़ा डेटाबेस टेक्नोलॉजीज के बारे में पता है, बिग डेटा के बारे में पता है, तो वो तुरंत ऐसा रिपोर्ट क्रिएट करके एक बिजनेस एनालिस्ट को बताएगा कि हाँ ये रहा रिपोर्ट। अब वो बिजनेस एनालिस्ट एक अपने स्टैटिस्टिशियन एनालिस्ट के साथ बैठेगा और वो बोलेगा कि आप मेरे को एक स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाओ इसके ऊपर, इस डेटा के ऊपर, और मुझे बताओ कि फोरकास्ट करके बताओ कि अभी तक ये हुआ है तो फ्यूचर में क्या होगा। तो अभी क्या है कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताया अभी, जो DA, BA, जो डेटा एनालिस्ट और जो बिजनेस एनालिस्ट, जो स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं एनालिटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। और एक मतलब कहने का मतलब एक बिजनेस प्रॉब्लम को लिया, उसको एक कन्वर्ट किया कि डेटा के रूप में और एक स्टैटिस्टिकल रूप दिया उसको, और उसके बाद उसको एनालाइज करके जब एक एनालिसिस हो जाएगी तब वो बोलेंगे कि इस कंट्री का ये प्रोफाइल है, X प्रोफाइल है, Y तरह के GDP है, इतने सारे ड्रग हम लॉन्च कर रहे हैं तो इसके कारण इतने Z नंबर ऑफ पीपल को फायदा होगा। सो एक उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया, मतलब एक रूल सेट बना दिया कि अगर x + y हो तो z होना चाहिए। ऐसा पास्ट डेटा में हुआ है इसलिए फ्यूचर में भी होएगा। वो एक उन्होंने एक एनालिटिक्स सोल्यूशन बना के फिर एक जो बिजनेस जो मेन ऑर्गेनाइजेशन जिसने पूछा था कि कितने लोगों को फायदा होगा, उनको ये जाके बताएंगे कि भाई ये इसके मतलब पास्ट में इतना हुआ है, इसके कारण फ्यूचर में ये ऐसा होने के इतने 90% 95% चांस है कि इतने लोगों को फायदा होएगा, Z नंबर लोगों को फायदा होगा। सो इस तरह से क्या होता है कि एक बिजनेस प्रॉब्लम को हम एक एनालिटिक्स प्रॉब्लम का क्रिएट, मतलब एक उसको हम फ्लेवर देते हैं बाय एनालाइजिंग द राइट डेटा, बाय क्रिएटिंग एन इक्वेशन, और जब वो इक्वेशन बन जाता है तब हम उसको एक कन्वर्ट कर देते हैं बिजनेस प्रॉब्लम में कि भाई क्या होने के चांसेस हैं। अच्छा, अभी एनालिटिक्स में क्या होता है कि हम कहते हैं कि हर डेटा में एक इंटेलिजेंस छुपा हुआ है। मतलब हर डेटा के अंदर, सपोज आपने फेसबुक में पोस्ट किया आई लाइक न्यू मॉडल ऑफ बजाज पल्सर, राइट? तो बजाज पल्सर ने आपने बोला कि हाँ मेरे को अच्छा लगा या मेरे को नहीं अच्छा लगा, तो उसमें एक इंटेलिजेंस वैल्यू है। मतलब हम कहते हैं अगर बजाज कंपनी है तो वो बोलेगा यार हमने जो नया बजाज पल्सर लॉन्च किया वो काफ़ी कम लोगों ने लाइक किया उसको। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक डेटा जो स्टोर होता है उस डेटा में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस छुपी रहती है, और उसको एनालाइज करने के लिए इस ग्राफ में बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि सबसे पहले रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा का मतलब है कि सपोज सारे फेसबुक पोस्ट ले लिया हमने,
सो वो काफ़ी रॉ है, क्योंकि हर फेसबुक पोस्ट में क्या होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें बातें की होंगे, आपने फ्रेंड के बारे में बात किया होगा, आपने कोई और चीज़ के बारे में बात किया, क्योंकि हर फेसबुक पोस्ट जो आज के दिन में हुआ, ऐसा तो नहीं कि बजाज पल्सर के बारे में बात किया। सो उसमें से आप क्या बोलोगे कि यार जो डेटा एनालिस्ट है वो बोलेगा अच्छा ठीक है, मुझे सारे फेसबुक पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे वो फेसबुक पोस्ट चाहिए जिसमें बजाज पल्सर मेंशन था। तो वो क्या कर रहा है कि रॉ डेटा को लेके थोड़ा क्लीन कर रहा है, वो क्लीन करता रहेगा डेटा एनालिस्ट सॉफ्टवेयर टूल्स को यूज करते हुए। फिर फाइनली जब एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बन जाएगी, स्टैंडर्ड रिपोर्ट मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ पूरे फेसबुक पोस्ट में आज के दिन में 1 लाख फेसबुक पोस्ट ऐसे थे जिन्होंने बजाज पल्सर को मेंशन किया, उसमें से 1 लाख में से आपने बोला कि 20% लोगों ने लाइक किया, 40% लोगों ने नॉट लाइक किया। यस गो अहेड। हाँ जी, हाँ क्या चीज में, मतलब कौन से सॉफ्टवेयर में यूज होती है कि क्या चीज में यूज होती है? हाँ ईआरपी, हाँ ईआरपी, हाँ हाँ जी, हाँ ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, और मैं उस क्वेश्चन को मैं अभी मैं आंसर करने वाला हूं इनफैक्ट। हाँ नहीं मतलब समझिए आप, जैसे आपने दो तीन चीज़ें बोली, आपने बोला ईआरपी बोला, आपने बोला जावा बोला, आपने डॉट नेट बोला, आपको थोड़े और भी चीज़। हाँ नहीं, ईआरपी से रिलेटेड ऐसी बात नहीं है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि देखिए ईआरपी में क्या है ना, सारा डेटा स्टोर्ड रहता है, राइट। डेटा जो आता है मेनली ईआरपी के थ्रू आता है। तो अब जो ईआरपी में जो डेटा है, सपोज व्हाट इज ईआरपी? ईआरपी इज नथिंग बट स्टोरेज ऑफ डेटा, राइट। आई मीन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट सोर्सेज, बहुत अलग अलग सोर्स से आपको एक ईआरपी में, हाँ सो ईआरपी में क्या डेटा स्टोर हो रहा है। बट एनालिटिक्स में क्या होता है, एनालिटिक्स में आप उस डेटा को ईआरपी से निकाल के फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हो, राइट। अभी आपका एक क्वेश्चन था कि आपके जैसे फ्रेशर कहाँ पे ये काम आते हैं, राइट। तो हाँ, तो इसके लिए ना मैं एक स्लाइड में जाना चाहूँगा, मैं ये स्लाइड में जाना चाहूँगा। अभी क्या है कि एनालिटिक्स में, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि एनालिटिक्स में इंडिया में 1 लाख डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, राइट। अब एनालिटिक्स क्यों इंडिया में फेमस हो रहा है, बिकॉज एनालिटिक्स और इंडिया का मेन रीज़न क्यों फेमस होने का, क्योंकि इंडिया में क्या इंजीनियर्स काफ़ी सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इंजीनियर्स के पास टिपिकली काफ़ी अच्छा थिंकिंग पावर होता है, काफ़ी अच्छा एनालिटिकल ब्रेन होता है। तभी आप देखेंगे कि कई सारे जो अच्छे जॉब्स रहते हैं वर्ल्ड वाइड, वो काफ़ी बार इंडियन इंजीनियर्स के पास जाते हैं। मतलब एक बंदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो भी वो बिजनेस एनालिस्ट बन जाता है, बंदा केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है तो भी एक बिजनेस एनालिस्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है, बहुत अच्छा थिंकिंग पावर है। जो एनालिटिक्स में जो मेन स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड, एंड ऑब्वियसली नॉट वन पर्सन विल हैव ऑल द स्किल्स, मतलब एक आदमी के पास सारा स्किल नहीं होगा, बट जो जो मेन स्किल्स, मतलब एक टीम को अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को इस तरह के 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामर टाइप के लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मुझे ऐसे बंदे की ज़रूरत पड़ती है जिसको स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स आता हो, स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन आता हो, मुझे ऐसी भी थोड़े बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है जिनको थोड़ा मैथ्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो। तो एंड प्लस ऐसे आदमी का ज़रूरत पड़ता है जिसको बिजनेस के बारे में भी आता हो। अभी क्या है, आपको ये समझना है कि एज ए इंजीनियर आपके पास 2 चीज़ें हैं। आपके पास एक तो प्रोग्रामिंग का ठीक ठाक बैकग्राउंड होता है, कोई भी प्रोग्रामिंग हो, सी प्रोग्रामिंग भी हो, जावा प्रोग्रामिंग हो। जैसे मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपने लाइफ में, आप लोग तो आजकल जावा सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बट हम लोग के टाइम में खाली सी प्रोग्रामिंग हम सीखते थे। एंड आई टेल यू, मेरे बैच से कई लोग गूगल में काम कर रहे हैं, कई लोग याहू में बिग डेटा के अंदर, बिग डेटा एनालिसिस के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बैकग्राउंड हो तो वो काम आता है। तो प्रोग्रामर प्लस नॉर्मली इंजीनियर्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स ऑल्सो,
when I say mathematics, I'm not talking about pure mathematics, I'm talking about applied mathematics. So एक applied maths का अच्छा, क्योंकि normally इंडिया में जो करिकुलम होते हैं कॉलेजेस के, उसमें मैथ्स पूरे फर्स्ट ईयर में पूरे मैथ्स वापस से पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग में भी। तो आपका जो मैथ्स का बैकग्राउंड है, आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, ये सॉलिड बैकग्राउंड बन जाता है। तो ये जो दो मेन स्किल है, मतलब आप एक जो टीम बनती है एनालिटिक्स में, जिसमें एक प्रोग्रामर चाहिए, दो तीन प्रोग्रामर चाहिए, एक स्टैटिस्टिशियन चाहिए, एक बिजनेस पर्सन चाहिए, तो आप उसमें क्या है कि काफ़ी जगह फिट हो सकते हो। आप अच्छा प्रोग्रामिंग जानते हो तो आप प्रोग्रामर की तरह डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। आपको मैथमेटिक्स ठीक ठाक आता है तो आप एक स्टैटिस्टिकल एनालिस्ट की तरह काम कर सकते हो, या फिर एक डेटा एनालिस्ट जिसको मैथमेटिक्स भी आता है तो उसका एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो क्या हो रहा है आज के दिन में इंजीनियर इन एनालिटिक्स इंडस्ट्री, क्या हो रहा है एनालिटिक्स बिग डेटा में, कि मतलब हमारे यहाँ से आज तक हमने बिग डेटा में कम से कम 5 से 6 हज़ार लोगों को, 5 से 6 हज़ार इंजीनियर्स को हमने पढ़ाया है। और वो सारे जो इंजीनियर्स जो हमने पढ़ाए हैं वो या तो बहुत अच्छे कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी काम कर रहे थे, या फिर वो अल्टीमेटली कॉर्पोरेट हाउस में अच्छी जगह चले गए। इंजीनियर्स नहीं सारे, नो नहीं, आप समझिए मेरी बात। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेशर्स, बिकॉज क्या होता है एनालिटिक्स में जिस तरह की जो टीम्स बनती हैं उसमें मतलब जब ये टीम, सिद्धार्थ, वर यू सेइंग समथिंग? या नहीं, मेरा ये कहना, एग्जैक्टली मेन क्वेश्चन ये है कि बेसिकली एक फ्रेशर को एनालिटिक्स में जॉब कैसे मिलेगी। तो मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। देखिए, जब भी टीम बनती है एनालिटिक्स की तो वो पिरामिड की तरह रहती है। पिरामिड में क्या रहता है, आई एम टॉकिंग ऑफ एक्सपीरियंस लेवल। हाँ, पहले हम एक्सपीरियंस लेवल की तरह बात कर रहे हैं। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो जितना मतलब, क्योंकि एनालिटिक्स में भी क्या कॉस्ट, मेन चीज़ है कॉस्ट। अभी क्या हो रहा है कि इंडिया क्या है ना, पूरा मैथ फैक्ट्री बन गया है। इंडिया हैज़ बिकम दी एनालिटिक्स फैक्ट्री फॉर द एंटायर वर्ल्ड। उसका रीजन मेन ये है, पहला कि टैलेंट काफ़ी है यहाँ पे, इंजीनियरिंग टैलेंट काफ़ी है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये जो कॉस्ट को बचाना है या कॉस्ट को मैनेज करना है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर कोई टीम बनती है, अगर कोई एनालिटिक्स की कंपनी बन रही है, तो सबसे ज़्यादा तादाद में आई वुड से 30% लोग जो होते हैं वो होते हैं फ्रेशर्स। फिर होता है कि 0 to 2 ईयर्स वाले, 0 to 2 ईयर्स वाले होते हैं अराउंड 30% और। अब जो बाकी जो बचते हैं वो पूरा मिला के 40% होते हैं, ओके, वर्सेस जो फ्रेशर्स एंड 0 to 2 होते हैं, बिकॉज ऑफ कॉस्ट वो ऑलमोस्ट 60% और ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ एक कोई भी एक एनालिटिक्स कंपनी का ऑलमोस्ट 2/3 जो है वो होते हैं 0 to 2 ईयर्स वाले एक्सपीरियंस वाले, मतलब फ्रेशर से लेके 1 या 2 साल वाले। बिकॉज उसके में अगर वो चीज़ नहीं करेंगे तो एक जो टीम बनेगी वो काफ़ी एक्सपेंसिव टीम बन जाएगी एनालिटिक्स में। एंड कोई भी क्लाइंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टीम के लिए पैसा नहीं देना चाहती है। सो आपको ये समझना है। एंड यू सी, आज मतलब कहने का ये मतलब है कि जितने ज़्यादा हायरिंग हो रही है, पता नहीं आप लोग कॉलेज में अगर कोई एनालिटिक्स की कंपनी आती है कि, आई वाज लुकिंग एट द प्लेसमेंट लिस्ट, आई डिडंट फाइंड एनी एनालिटिक्स कंपनी पर से, बट आज के दिन में जो कई जगह जहाँ पे टैलेंटेड या जहाँ पे थोड़े ट्रेंड इंजीनियर्स मिल रहे हैं, वहाँ पे एनालिटिक्स की कंपनीज भर भर के आ रही है। बैंगलोर इटसेल्फ में 600 एनालिटिक्स की कंपनी है, आपके गुड़गांव में 125 से 150 कंपनीज हैं, बॉम्बे में 125 से 150 है, पुणे में 200 हैं, चेन्नई में कम 100 से हो गए, कैलकाटा में अराउंड 75-100 हैं। सो मतलब ऑल टुगेदर इंडिया में ऑलमोस्ट 1000 कंपनीज आज के दिन में ऑलमोस्ट हो गए हैं जो कि एनालिटिक्स में हायर कर रही हैं। और जब एनालिटिक्स में हायर करते हैं तो उनके लिए अगेन उनका भी कंपटीशन है। सब कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता है कि खाली हम एक्सपीरियंस लोगों को हायर करें, क्योंकि उनके भी क्लाइंट उनको एक्सपीरियंस लोगों के लिए इतना पैसा नहीं देंगे। बिकॉज अगेन आज के दिन में ये मार्केट इतना ग्रो कर रहा है, सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, तो इसलिए टैलेंट का मिलना
सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो गई है, जो ट्रेन टैलेंट मिलना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट चीज़ हो गया है. So that is the idea. That is the reason why freshers still have lot of demand in this industry. इन आईटी में भी यही है. अगर आप आईटी के बारे में सोचोगे तो आईटी में भी लोग अगर ऐसे सोचेंगे फ्रेशर को क्यों लेते हैं, फ्रेशर को इसलिए लेते हैं क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है. फ्रेशर को इसलिए लेते हैं कि उनको कोई भी चीज़ में ट्रेन कर सकते हैं. फ्रेशर को इसलिए लेते हैं जिससे कि उनका अट्रीशन, मतलब अगर खाली एक्सपीरियंस को लेंगे तो उनका कंपटीशन अदर प्लेयर से भी ज़्यादा बढ़ेगा. फ्रेशर को लेंगे तो उनको मोल्ड कर सकते हैं, ट्रेन करके अपनी तरीका से जैसा भी करना है वैसा कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई फ्रेशर का डिमांड तो हमेशा, कोई भी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो फ्रेशर का डिमांड तो हमेशा ही ज़्यादा रहता है. इसलिए उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि फ्रेशर का क्या डिमांड होगा. सो वो फंड है. अच्छा, और एक और कई लोग पूछते हैं कि इंडिया क्यों. इंडिया का मेन मैन्युफैक्चरिंग बनने का ये रीज़न है क्योंकि एक तो यहाँ पे टैलेंट है, और एक टैलेंट मतलब इंजीनियरिंग क्राउड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव है. सो दीज आर द टू मेन रीजंस व्हाई इंडिया हैज़ बिकम एनालिटिक्स फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जैसे मैंने आपको बताया 1000 कंपनी इन द लास्ट 5 years हमारे आंखों के सामने यहाँ पे इंडिया में आ गए हैं. आज के दिन में $200 मिलियन मतलब कि ऑलमोस्ट 1200-1500 करोड़ का अपॉर्चुनिटी है इंडिया में. बट बाय 2015 वो 5 से 6,000 करोड़ का बन जाएगा. काफ़ी सारे आईटी सर्विस कंपनी, इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो थोड़ा सा रिसर्च करना हो तो आप कोई भी बड़ी आईटी कंपनी, सपोज आप इन्फोसिस ले लो, आप TCS ले लो, आप कॉग्निजेंट ले लो, TCS, कॉग्निजेंट, any IT company that you know, just go to their website. Front page में they will talk of big data, they will talk of analytics, because that is the next wave in the analytics in the industry. सब बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी जितना इनके पास पैसे वैसे थे सब लेके वो ये अपॉर्चुनिटी को कैश इन करने के लिए पीछे पड़ गए. सबके वेबसाइट, किसी की भी कोई भी बड़ी आईटी कंपनी का वेबसाइट आप खोलोगे तो आप देखोगे कि एनालिटिक्स बिग डेटा के बारे में ही वो स्टार्टिंग में बात करते हैं. पहले पेज में वो दे विल टॉक अबाउट बिग डेटा एंड एनालिटिक्स. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स. और इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि उनके पास एज ए सेड उनके पास काफ़ी अच्छा एनालिटिकल ब्रेन होता है, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स माना जाता है, उनका प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड होता है, इसीलिए ये लोग काफ़ी हाई तादाद में, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नंबर 1 आज के दिन में इंजीनियर्स ही हायर हो रहे हैं बिग डेटा एनालिटिक्स में. ऐसे तो बिग डेटा एनालिटिक्स का फील्ड ऐसा इतना वास्ट है और इतने एप्लीकेशन एरियाज हैं कि इंजीनियर्स हो, मैथमेटिशियन हो, इकोनॉमिक्स कोई पढ़ रहा हो, स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहा हो, कोई बिजनेस भी पढ़ रहा हो, कोई डॉक्टर पढ़ रहा है, फार्मा पढ़ रहा है, हमने हर तरह के लोगों को इसमें ट्रेन किया है. सबसे ज़्यादा आज के दिन में आई वुड से 67% इंजीनियर्स हायर होते हैं, और 2/3 जो है, 1/3 जो है, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट्स हायर्ड. सो 2/3 इज इंजीनियर्स एंड रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 1/3. जिस तरह का हायरिंग हमने देखा है, बिकॉज उसका रीज़न भी बहुत सिंपल है. इंडिया में क्या है कि लोगों का फैसिनेशन, अगर किसी के पास भी थोड़ा सा दिमाग है तो वो तो या तो इंजीनियरिंग करता है या तो डॉक्टर्स करता है. सो और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें अगर आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास थोड़ा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड है, थोड़ा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, तो आपका वैल्यू काफ़ी माना जाता है. मतलब वाई इट इज़ एडवांटेजेस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फर्स्ट बिकॉज एज आई सेड अगेन रिपीटिंग, गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, गुड प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, प्लस इट इज़ एन इंडस्ट्री वेयर विच प्रोवाइड्स हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी. ऑलमोस्ट आज के दिन में एवरेज पे पैकेज यहाँ पे चल रहा है 4.5 to 5.5 lakhs एवरेज. फर्स्ट ईयर ग्रोथ ऑलमोस्ट 40% चलता है, 3 साल के अंदर ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ हो जाता है. 3 years इज ऑलमोस्ट 100% ग्रोथ. सो इट्स हाई पेइंग, हाई ग्रोथ, वेरी वेरी निश, एंड इट हैज़ स्पेशलाइजेशन, इट हैज़ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्पेशलाइजेशन, प्लस एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉब सेटिस्फैक्शन है. मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर आप एक टिपिकल आईटी कंपनी में जाते हो तो आज के दिन में क्या होता है कि आप मेंटेनेंस कर रहे हो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करते हो, या फिर मोस्टली एक 6-6 महीना, साल भर ऑलमोस्ट बेंच में बैठे रहते हो. वेयर एज एनालिटिक्स में अगर आप जाते हो ट्रेन होके तो आपको ऑलमोस्ट पहला दिन से प्रोजेक्ट रहता है, प्लस आपका प्रोजेक्ट ऐसा रहता है जिसमें आप कोई जो चेंज करना, मतलब सपोज आपने एक कंपनी को हेल्प किया कि आप अच्छा डिसीजन बनाओ, तो वो आप देख सकते हो कि उसका फायदा क्या हुआ, उसका नुकसान क्या हुआ, एकदम आपके आंखों के सामने रहता है. एक जॉब सेटिस्फैक्शन, काफ़ी हाई जॉब सेटिस्फैक्शन रहता है उसके कारण. सो देर आर मेनी एडवांटेजेस फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक्चुअली टू गेट इनटू इट. 3 तरह के प्रोफाइल हम बोलते हैं कि यहाँ पे हैं. एक हम प्रोफाइल बोलते हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट होता है,
एक जो कि बिजनेस में काफ़ी फोकस रहता है। सो कोई बंदा एमबीए किया हुआ है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा, एक स्टेटिस्टिकल एनालिस्ट जो कि बंदे कोई स्टैट्स मैथ्स और इको से आते हैं तो उनके लिए अच्छा। और होता है ईटीएल। ईटीएल क्या है कि बीटेक engineering, any kind of engineering basically with good knowledge of database programming, तो उनके लिए data analyst, so ETL is nothing but data analyst, sorry ETL I used a technical word, extraction transformation loading. Basically you extract data from the database sources, you transform it and then you create reports. So that is part of that is done by data analyst. So that's where most of the engineers get hired, and that's where the bulk of hiring also happens. एज अ सेड फ्रेशर के लिए ऑलमोस्ट 3 से 5 लाख के बीच का पैकेज रहता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोफाइल्स। मिड लेवल के लिए अगेन काफ़ी बढ़ता जाता है। हमने देखा है कि एक एक साल में 2-2 साल में ऑलमोस्ट लोगों के 100% इंक्रीमेंट हो गए हैं। सो अगेन यू नो इफ़ यू गो टू एनी एनी प्लेसमेंट वेबसाइट लाइक Naukri and all, you will see what I'm talking about. Lot of companies are hiring in this domain. I'm going to talk about a little bit. So any questions, guys? I'm willing to take any questions right now. Any questions before I talk about a little bit of Ivy? Any other question? Okay. Just a little bit about Ivy. We are ranked among the top 10 big data analytics schools in India. We are one of the oldest big data analytics training provider in India as well. We started in 2007. Almost 10,000 लोगों को हमने पढ़ा दिया है आज के दिन में. काफ़ी सारे हमारे एनालिटिक्स रिक्रूटर्स हैं. काफ़ी सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं हमारे. ऑफिशियल हम ट्रेनिंग पार्टनर हैं जेनपैट, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, आईटीसी, लॉट ऑफ कंपनीज के. प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अलग अलग कॉलेजेस के हमारे पास आए हैं, हमने पढ़ाए हैं. स्टूडेंट्स फ्रॉम आईआईटीज, IIMs, good colleges, professionals from variety of different colleges as well. Plus काफ़ी सारे रिक्रूटिंग कंपनीज हमारे रहे भी हैं. ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं. बट मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ. मैं आपको थोड़े वेबसाइट्स दिखाना चाहता हूँ जो कि एनालिटिक्स में, मतलब कंपनीज जो कि एनालिटिक्स में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं. एक कंपनी है म्यू सिग्मा जो कि बहुत फेमस है एनालिटिक्स के लिए और ग्रोथ स्टोरी मानी जाती है इंडिया में. फिर एक कंपनी है आप बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है म्यू सिग्मा, स्टार्टेड बाय एन इंडियन ओनली. आपको मैं बोलूँगा कि ये सब कंपनीज के थोड़े आप नाम नोट कर लें, और इन सब कंपनीज में ना आप जाके ये देखो इनके ना सोल्यूशंस हैं, इनके केस स्टडीज़ हैं. जैसे ये केस स्टडीज़ हैं, उस केस स्टडीज़ में आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पे एनालिटिक्स का यूज़ हुआ, एनालिटिक्स का यूज़ कैसे हुआ, किधर हुआ, कैसे किया, कितने लोगों ने पैसे कमाए, किस तरह से काम किया. फिर आप इनके करियर पेज में भी आप जाओ, आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के लोग हायर हो रहे हैं इसमें. आपके काफ़ी सारे कंपनी, सपोज डिसीजन साइंसेस करके एक कंपनी है जो कि काफ़ी फेमस मानी जाती है. और इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जो एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी है डनहम्बी, बहुत फेमस, बड़े बड़े क्लाइंट हैं इसके. फिर आपके काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे एक है कंपनी ZS एसोसिएट्स करके, वो भी एक इंडियन से स्टार्ट हुई थी. आप इन सारे कंपनी में मैं ये बोलूँगा कि आप जाओ और आप इस कंपनीज में आप ये देखो कि ये कर क्या रहे हैं, किस तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं. फिर आप ये भी देखो कि आप नौकरी में जाके naukri.com में जाके आप ये देखो कि बिग डेटा का अपॉर्चुनिटीज़ क्या है. बिग डेटा के करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आपको ये सब चीज़ें भी समझ में आएगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं.
कई सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं आपके इसमें इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी। आप थोड़ा सा गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा, लाइक बिग डेटा एनालिटिक्स इन इंडिया टू टच $1 बिलियन बिजनेस। किधर किधर एप्लीकेशंस हो रही हैं, कौन इसमें अप्लाई कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या यूजेस हो रहे हैं, मतलब कौन से सेक्टर में किस तरह का यूज़ हो रहा है, किस तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं ये लोग। तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी काफ़ी पता चलेगा। प्लस अगर आप चाहो तो मैं आपको हमारे एक ब्लॉग का हम अपने ब्लॉग का मैं आपको एक पेज देता हूँ, जिसमें हमारे ब्लॉग में अगर आप सर्च करोगे तो एक बिग डेटा के ऊपर आपको काफ़ी सारे एनालिटिक्स कंपनीज के लिस्टिंग भी मिल जाएंगी पूरी। सो आप चाहो तो एक बिग डेटा में अगर आप एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ कंपनीज, आप लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे सर्च करोगे, सो आपको सॉरी नहीं आई, बट सो अगर आपको चाहिए तो आप ये लिस्ट देख सकते हो, एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ एनालिटिक्स कंपनी, जिसमें हमने कुछ 70-80 टॉप एनालिटिक्स कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं, IBM, म्यूसिकमा, लेटेंट, HCL, एक्सेंचर, एंड उनके लिंक्स भी दिए हुए हैं कि वो किस तरह के लोगों को हायर करते हैं और क्या कर रहे हैं। सो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के लोग हायर हो रहे हैं, किस तरह की कंपनीज आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, उनके बारे में अभी आपको पूरा आइडिया मिलेगा, जिससे कि आप एक बेटर डिसीजन इंफॉर्मेशन, मतलब एक बेटर डिसीजन बना सकते हो आप अपने करियर के बारे में। सो सिद्धार्थ, एनी अदर क्वेश्चन दैट दीज गाइज हैव? कहाँ पे? HCL में भी, yes, HCL is they hire a lot of people in HCL. आप ये HCL का हाँ हाँ जी, कंप्यूटर साइंस वाले काफ़ी लोगों का हायर होता है। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस इज इन विद इन इंजीनियरिंग, ऐसे इंजीनियर इन जनरल इंजीनियर्स काफ़ी हायर होते हैं, बट कंप्यूटर साइंस सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के अंदर हायर होता है, एनालिटिक्स के अंदर। Because you see, ultimately you work on lot of tools, right, lot of software tools. So computer engineers are typically they normally are good in software tools. So this is HCL website, business analytics का overview है, किस तरह की चीज़ें वो करते हैं वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, किस तरह के लोगों को हायर करते हैं वो भी है। Yes, any other question?
इसको दिखाना है, क्या करना है अभी? हाँ हाँ, ब्रेक चल रहा है कहीं, वही समझ रहा हूँ। आई थिंक ख़त्म हो गया।